Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on chapter number 2 of geography, the origin and the evolution of Earth. Okay, so in this chapter, we have already studied what are the various hypotheses that are given regarding the evolution of the universe. कैसे पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था, व्हाट वाज नेबुलर हाइपोथेसिस, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी क्या था, मतलब the most acceptable one among the modern theories. Then we also had a kind of discussion on how the stars were formed, how the planets were formed, then came into being our solar system, and then finally in our previous class we also discussed how the moon was formed. Basically, what are few theories that are given regarding the formation of moon. So now जब हमें पता चल गया है कि how are the various important bodies in our solar system were formed, the ones that are related to us, now we need to understand कि अब जब form हो गए हैं planets moon, उसके बाद जो हमारा अर्थ है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ. ऑब्वियसली अर्थ वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं. सो कैसे ये चेंज आया, दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग. You can even see clearly on your screen through this picture that how basically the earth was formed from few pieces of planetesimals and how these planets were finally formed. Okay, कैसे हमारा अर्थ स्पेसिफिकली कैसे फॉर्म हुआ था, that is now we will understand. Though we have already understood कि कैसे फॉर्म हुआ था, now we will see how its structure changed or evolved कैसे हुआ था. So as you can clearly see on your screen that जो planet है initially एकदम रॉकी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और हॉट ऑब्जेक्ट्स थे से बना हुआ था, बहुत बैरन, ऑब्वियसली कुछ उधर नहीं था तब तक एग्रीकल्चर, एंड देयर वाज अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट वाज प्रेजेंट, and it was nowhere near to where we consider our earth today. You can see in this picture also, see the initial stages and see the current phase. कितने सारे changes आए. Initially सिर्फ barren था और आज it is a beautiful kind of planet, obviously with life on it. तो ऐसा पहले कुछ नहीं था. So what are the series of processes या events जिसके कारण ये changes आए थे? ठीक है, this is what we will now look at now. So we know that around 4,600 million years ago and present बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा evolution, that means अर्थ में evolution हुआ था और specifically life आई थी. अर्थ we know is a layered structures. हमें पता है outer most end of atmosphere से लेके center of earth तक बहुत सारे लेयर्स हैं और बहुत डिफरेंट है वो एक दूसरे से. इवन इफ वी टॉक अबाउट फॉर टुडे टाइम, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के भी कितने लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ओके, एंड ऑब्वियसली इन बिटवीन थर्मोस्फेयर. एंड अगर हम अर्थ की भी बात करें तो हमें पता है क्रस्ट है, मेंटल है, देन वी हैव कोर, कोर में भी इनर कोर, आउटर कोर. So many layers, and it has actually taken a long span of time to take its present shape. So हमें ये पता है कि there are the materials that are existing are obviously not uniform. जो atmospheric matter है उनकी density कम है, that is why they are on the upper layers. Whereas from the surface to the deeper depth जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे हर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है. हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लासेस की जो डेंसर मेटल है या डेंसर मटेरियल्स हैं वो क्या है, अंदर की तरफ चले जाते हैं, कोर की तरफ. सो दिस इज व्हाट विल हैपन नाउ. सो एक ब्रीफ आइडिया हमें आ गया कि बहुत एवोल्यूशन हुआ था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये जो एवोल्यूशन है तीनों चीजों का. वी नो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जब तीनों मिलेंगे तभी क्या होगा, बायोस्फेयर फॉर्म होगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस इज फॉर्म. सबसे टू स्टार्ट विथ we will understand about lithosphere. Now we know that earth was mostly in a very volatile state.
ड्यूरिंग इट्स इनिशियल स्टेजेस, मतलब वॉलेटाइल मतलब इजीली लाइक चेंज हो रहा था। जैसे जैसे इंक्रीज हुआ डेंसिटी में, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, द टेम्परेचर इनसाइड ऑल्सो इंक्रीज, अंदर का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जो मटेरियल अंदर की साइड थे वो क्या होने लग गए, दे स्टार्टेड सेपरेटिंग डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। हमें पता है जब चीजों की डेंसिटी अलग होती है तो वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। ओके, वी नो दैट डेंसिटी प्लेज अ मेजर रोल whenever we talk about any material। हमें पता है certain things do not mix, या हम पानी और ऑयल जब डालते हैं तो ऑयल ऊपर आ जाता है because of the difference in density। so density अलग होने के कारण क्या हुआ कि चीजें जो इस अपनी पूरे अर्थ के अंदर थी वो भी क्या हो गई, सेपरेट होने लग गई एक दूसरे से, जिसके कारण जो हैवियर मटेरियल है वो अंदर की तरफ चले गए, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ चले गए, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स है वो बाहर की तरफ आने लग गए, सरफेस की तरफ। धीरे धीरे विद टाइम जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होने लग गया तो चीजें सॉलिडिफाई हो गई और कंडेंस होने लग गई इनटू स्मॉल साइजेस। और लेटर हम देखेंगे जो आउटर सरफेस है अर्थ का वो टेम्परेचर कूल होने के कारण क्रस्ट जैसे फॉर्म में डेवलप हो गया, ठीक है। इट फॉर्म्ड लाइक अ thin layer of crust which we actually call as the crust of the earth during the formation of moon। और जो giant impact जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जब मून पड़ा था इस टाइम पे अर्थ जो है वापस से हीटेड अप हो गया because of this great impact, and it is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers। और फिर इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो चेंजेस आ रहे थे इसके कारण और अर्थ में लेयर्स बन गए, और लेयर्स कौन से हो गए, कोर, मेंटल और क्रस्ट, और कोर में भी आउटर कोर और इनर कोर। तो फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर हमें पता है जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस, यानी जब क्रस्ट से हम कोर की तरफ मूव करते हैं, अपर लेयर से इनर लेयर की तरफ जाते हैं, तो डेंसिटी जो मटेरियल अवेलेबल है वहां पे उनकी बढ़ती रहती है। ओके, so about crust, core and mantle we will study in our next chapter, that is interior of the earth। उसमें हम डिटेल में सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, but here we just need to understand कि फॉर्म कैसे हुई है। So I will just repeat the whole process again in one go so that it becomes more clear to you people। यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो बहुत वॉलेटाइल था, ऐसे स्टेज पे था कि चेंज होता जा रहा था। धीरे धीरे जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इनसाइड द अर्थ तो देयर वाज आल्सो इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स, जिसके कारण क्योंकि अलग अलग चीजों की अलग अलग डेंसिटी थी तो वो सेपरेट होने लग गए, हेवियर मेटल अंदर की तरफ चले गए सेंटर की तरफ, और लाइटर वंस ऊपर की तरफ आने लगे, और धीरे धीरे टेम्परेचर कूल होने लगा और चीजें सॉलिडिफाई होने लग गई और कंडेंस भी होने लग गई। हमें पता है कंडेंसेशन तभी होता है जब कंपैरेटिवली कूलर टेम्परेचर होता है कंपैरेटिवली। अब क्या हुआ कि इसके कारण जब ठंड हो रही थी तो आउटर लेयर जो है वो क्रस्ट के फॉर्म में डेवलप हो गया। फिर जब मून फॉर्म हो रहा था, जाइंट इंपैक्ट हुआ तो वापस से अर्थ हीटेड अप हुआ और डिफरेंशिएशन आया, जो मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट थे उनमें, और वो अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में सेपरेट हो गए, और सेपरेट होकर बन गए क्या, क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर और आउटर। So from the crust to the core, the density of the material क्या होता है, इंक्रीज होती है। हमें पता है क्रस्ट पे क्या होता है, जो मटेरियल है वो लाइटर डेंसिटी का होता है, और कोर की तरफ जाते हैं तो डेंसर हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे तो हमारा लिथोस्फेयर फॉर्म हो गया। अब हम आते हैं ऑन हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट दिस। So when we talk about atmosphere and hydrosphere, again one thing that we need to keep in mind कि ऐसा जैसा आज हमारा एटमॉस्फेयर है वैसा नहीं था, कि नाइट्रोजन है,
78% और अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन 21%. that was not the case. तो ये चीज हुई कैसे, ये हम समझ गए. ठीक है. वैसे about the composition of atmosphere we'll study again in detail in one of the chapter number 8, जिसमें पूरा chapter atmosphere के ऊपर ही है. अब हम देखते हैं जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है ये 3 स्टेजेस में बेसिकली डेवलप हुआ. फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, जो इनिशियल हमारा एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका लॉस होने लग गया, वो इट स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. ठीक है. सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, जो हॉट इंटीरियर है हमारे अर्थ का, उसके कारण एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होगा. क्यों होगा, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ वो बहुत हॉट है, उसके कारण हम देखेंगे आगे जाके कुछ गैसेस जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होंगे. फाइनली जब कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस होगा, हमें पता है ऑक्सीजन एक बाहर की तरफ छोड़ते हैं प्लांट्स और CO2 को इनहेल करते हैं, लेते हैं. दैट इज व्हाई क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है ऐड होगी और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे जिनके बारे में लेट अस स्टडी इन लिटिल मोर डिटेल. तो सबसे पहले क्या हुआ, जो अर्ली एटमॉस्फेयर था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी, ऐसा माना जाता है कि हमने पढ़ा था सोलर विंड्स आई जिसके कारण ये रिमूव हो गए. एंड अर्थ पे नहीं हुआ था, हमें पता है सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पे हुआ था, बिकॉज वी had a discussion about it कि जो एटमॉस्फेयर, जो हमारी ग्रेविटी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं था कि वो कंट्रोल कर पाए और सोलर विंड्स बहुत फोर्स से आ रही थी तो वो रिमूव हो गए. ठीक है. तो हमारा जो प्रिमोर्डियल एटमॉस्फेयर है, इनिशियल एटमॉस्फेयर है, वो रिमूव हो गया था. अब क्या हुआ, जब अर्थ कूल हो रहा था, गैसेस और वाटर वेपर जो है दे वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ. सॉलिड अर्थ में से बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी बहुत सारे गैसेस और वाटर वेपर, जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर का क्या होने लग गया, एवोल्यूशन होने लगा. अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन. ठीक है. अब ये प्रोसेस जो है थ्रू विच गैसेस बाहर की तरफ आई फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको हम बोलते हैं डी गैसिंग. ठीक है. अब उसके बाद शुरू हुए वॉल्केनिक इरप्शन. जब कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन हुए तो हमारे एयर में क्या रिलीज हुआ, वाटर वेपर एंड गैसेस. सो वाटर वेपर एंड गैसेस रिलीज हुए किसके कारण, कॉन्टिन्यूअस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण. ओके. नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, एज द अर्थ कूल्ड, the water vapor released basically started getting condensed. तो जैसे जैसे अर्थ कूल हुआ, जो वाटर वेपर रिलीज हुआ था वो क्या होने लग गया, कंडेंस होने लग गया, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई. कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में था, अब वो रेन वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया और जिसके कारण टेम्परेचर जो है और डिक्रीज हो गया. ऑब्वियसली जब कंडेंसेशन हो रहा है, रेन होगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और कूल डाउन हो जाएगा. रेन वाटर जब सरफेस पे गिर रहा था तो ये क्या होने लग गया, दिस स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑन द डिप्रेशंस. जो डिप्रेशंस थे, जो थोड़े से हॉलो थे, जो क्रैक्स थे, जो स्पेस थी, वहां से क्या हुआ, वहां पे डिपॉजिट हो गया क्या चीज, वाटर, जिसके कारण फॉर्म हो गए हमारे ओशंस. So the Earth's oceans were formed within around 500 million years ago from the formation of the Earth. यानी Earth के फॉर्म होने के around 500 million years के बाद हमारे oceans फॉर्म हुए. तो इससे हमें पता चल जाता है that the oceans are as old as around 4 million years ago. Sometimes around 3,800 million years ago, life began to evolve. Okay. So now we will see what happens after this. So as we should just remember कि अभी हमारा लिथोस्फेयर फॉर्म हो गया, एटमॉस्फेयर फॉर्म हो गया एंड हाइड्रोस्फेयर फॉर्म हो गया. But around 2,500 to 3,000 million years ago, before present, हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया.
अब जब हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली देन लाइफ स्टार्टेड एंड लाइफ वाज कन्फाइंड ओनली टू ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, ओशंस में ही लाइफ थी. नाउ ओशंस began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. मैंने अभी बोला फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इस तरीके से क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होने लगी. ओके, इवेंचुअली ओशंस जो हैं they were saturated with oxygen and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere. और ऐसे क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है उसके परसेंटेज इंक्रीज हो गए. ओके, सो let me revise very quickly the evolution of atmosphere and hydrosphere. तो 3 स्टेजेस में फॉर्म हुआ था हमारा एटमॉस्फेयर. फर्स्ट स्टेज में हमें पता है सोलर विंड्स के कारण जो प्रीमॉर्डियल हमारा हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर है वो रिमूव हो गया था. फिर कूलिंग ऑफ द अर्थ के कारण वाटर वेपर और गैसेस रिलीज हुई थी ऑन द सॉलिड अर्थ, जिसमें नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वर प्रेजेंट एंड द प्रोसेस of releasing of gas from inside of the earth to outside is called degassing. उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन के कारण वाटर वेपर और गैसेस निकले एटमॉस्फेयर से, और उसके बाद क्या हुआ, वाटर वेपर कंडेंसेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डिसॉल्व हुआ, रेन हुई जिसके कारण डिप्रेशंस में वाटर भर गया और हमारा हाइड्रोस्फीयर भी फॉर्म हो गया अराउंड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. उसके बाद क्या हुआ, हमारे ओशंस में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, ओशंस में हमारे लाइफ इवॉल्व हो. ओके, और फोटोसिंथेसिस और ये जो पूरा ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हुआ, lot amount of oxygen was released into the atmosphere. Finally we come to how did the life originate. Okay, so very simple thing, जो last phase है हमारा evolution of the earth का, वो है कि finally life कैसे origin हुई यहाँ पे. तो undoubtedly हमें पता है कि atmosphere earth का जो है obviously was not conducive for the development of the life initially. पहले ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि लाइफ उस पे आ सके. तो मॉडर्न साइंटिस्ट अब ये बोलते हैं कि जो लाइफ हमारे अर्थ पे आई है वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जेनरेट हुए थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ओके, उसके बाद वो असेंबल हुए, एक साथ आए, और फिर उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डुप्लीकेटिंग देमसेल्व्स, उनके जैसे और प्रोड्यूस होने लग गए, जिसके कारण बहुत सारे और मैटर जेनरेट हुए फाइनली, जो कि लिविंग सब्सटेंस बन गए. तो ये जो रिकॉर्ड ऑफ लाइफ हमारे पास जो अभी प्रेजेंट डेटा है या जो हमारी रिसर्च वर्क है एक्चुअली, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ऑन आवर प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड्स, ये हमें कैसे पता चलते हैं, ऑब्वियसली थ्रू रॉक्स. और रॉक्स में कैसे पता चलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स और बाकी जो रिसर्च वर्क है उससे हम क्लोजली रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अराउंड किस टाइम पीरियड पे फॉर्म हुआ था. तो स्पेसिफिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी, जो हमें मिलते हैं अराउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस इवन मच ओल्डर देन सम 3000 मिलियन ईयर्स. तो अज्यूम ये किया जा सकता है कि लाइफ जो है अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व होना स्टार्ट हुई. और अगर हम सम अप करना चाहें तो फाइनली हम बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया जो है उनका एवोल्यूशन हुआ, और फिर फाइनली बहुत बड़ा एक स्टेज चेंजेस आके फाइनली हमारे ह्यूमन बीइंग्स क्या हुए या मॉडर्न ह्यूमन डेवलप हुए थे. ठीक है, सो समवेयर हम देखेंगे ओरिजिन भी अलग अलग स्टेजेस में हुआ, कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग सब्सटेंस आए, कुछ एविडेंसेस हैं ब्लू एल्गी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड वाले. फिर फाइनली हम बोल सकते हैं यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मॉडर्न मैन के फॉर्म में हुआ था.
And then in your book they have told us about various eras, जहाँ पे particular किस पीरियड को भी डिवाइड कर रखा है इनटू सर्टेन एपोक डिपेंडिंग अपॉन क्या मेजर डेवलपमेंट हुए थे इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो इन आवर हिस्ट्री चैप्टर यू मस्ट हैव स्टडीड कि कैसे प्राइमेट से डेवलप हुए थे ह्यूमन बींग्स और बीच में कितने सारे स्टेजेस थे, होमो इरेक्टस, होमोनिड्स वगैरह. तो उनको अलग अलग पीरियड्स में कैसे डिवाइड करते हैं. Miocene period, Holocene period, we have made many other periods. Jurassic period you know भी basically एज जहाँ पे डायनासोर्स बहुत ज्यादा अपने को मिलते हैं. और फाइनली और बहुत सारे स्टेजेस हैं, कब एप थे, कब कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह आए, एंड ऑल दीज इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बिग बैंग थ्योरी, ओरिजिन ऑफ स्टार्स एंड ऑल. ओके, सो दीज आर द डेट्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर. एंड बेसिकली हम फाइनली बोल सकते हैं ऐसे करके हमारे पूरे अर्थ का एवोल्यूशन हुआ एंड ह्यूमन बींग्स का भी एवोल्यूशन हुआ थ्रू वेरियस फेजेस. कैसे यूनिसेल्युलर से कैसे अलग अलग आए, फिर एप से कैसे ह्यूमन बींग्स फॉर्म हुए, बीच में होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सारे करके फाइनली होमो स्पीशीज. ओके, एंड अलग थ्योरीज जो है कैसे नेबुलर हाइपोथेसिस हो, चाहे बिग बैंग थ्योरी हो, और हमारे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर आने के बाद लाइफ कैसे डेवलप. सो ब्रीफली हमने कर लिया है सब कुछ. नेक्स्ट चैप्टर और बाकी जो चैप्टर्स है इस बुक के, उसमें एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, अलग अलग चीजों का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ. Okay, so this is it for this chapter. I suppose everything is clear. If you have any doubt relating to the chapter, come back with your problems and we'll discuss and solve. So meet you all in the next class.